बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस क्लास 6 और पेज नंबर है बच्चों हमारा 125। पेज नंबर 125 और टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मोशन, TYPES, टाइप्स of motion. Types of motion. There are three types of motion. There are three types of motion. Namely, number one is translatory motion. Translatory motion. नंबर टू पे है वाइब्रेटरी मोशन, BRATORY, वाइब्रेटरी मोशन। नंबर थर्ड पर है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, ठीक है जी। नंबर वन इज वाइब्रेटरी, नंबर टू इज रोटेटरी। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन: objects or bodies around can be changed their positions in different ways. Every change in the position of an object or a body is called a motion. जब भी किसी भी चीज़ के अंदर चेंजिंग आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, या गाड़ी यहाँ से प्रभात जा रही है, या आपके स्कूल से घर आ रही है, या ये पंखा चल रहा है, तो ये मोशन कहलाता है। क्या कहलाता है? मोशन। डिपेंडिंग ऑन द वेज इन विच द पोजिशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस, इट्स मोशन कैन बी classified mainly into three different types. Number one is translatory motion, number two is rotatory motion, number three is oscillatory or vibratory motion. Translatory motion. Let us observe the motion of a bus moving on the road. These conclusions can be drawn about this motion. This bus is moved as a whole all along the path. Number two, all seats marked as ABC and all wheels of the bus move the same straight distance. In fact, every part of the bus moves the same distance in the same directions and at the same time. Such a motion in which every part of a body or an object moves via any path in the same directions by an equal distance at the same time is called a translatory or translational motion. For example, when we pull a chair from one place to another place in a room, every part of the chair, its arms, legs, seats, etc. move the same distance. This is a translatory motion. The solid or rigid bodies undergo translatory motion because all parts of the such bodies are tightly joined together. Some example of translatory motions are moving vehicles like cars, buses, trains. Number two, the movement of objects like utensils, tables, stones, bricks, etc. Number three, the motion of drawer of a table, the movement of a computer mouse, a ball falling room a height. Number translatory motion can be of two types: rectilinear motion and curvilinear motion. Rectilinear motion, the motion of a body undergoing translational motion in a straight line, is called
rectilinear motion. Examples of rectilinear motions are movement of a compact disk tray in a computer. Number 2, the movement of a door. Number 3, the movement of vehicles along the straight path. Number 4, the up and down movement of lift. Number 5, the movement of a train on the straight tracks. Motion of the body undergoing translational motion along curved path is called curvilinear motion. Example of curvilinear motion are given below. The movement of a vehicles along the turn. The movement of the vehicles along zigzag path. The movement of train on curved tracks. The motion of a rocket in space. The movement of its air molecules smokes. अच्छा जी, कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन के अंदर दो टाइप्स की मोशंस होती हैं. नंबर 1 कर्वलिनियर मोशंस और नंबर 2 रेक्टिलिनियर मोशन. कर्वलिनियर मोशन वो मोशंस होती है जो कर्व के साथ आती है. आप देखें, आप जब बस या गाड़ी या साइकिल कोई भी चीज़ चलाते हैं बच्चों, तो जब आगे से रोड टर्न लेता है, ये तो नहीं कि आपने कहा कि मेरे स्ट्रेट जाना मैं सीधा ही चला जाऊँ, नहीं, आप उसके साथ टर्न लेते हैं. मतलब जिगजैग रास्ता भी हो सकता है, टर्न वाला भी हो सकता है. ये कर्वलिनियर कहलाएगा जिसमें कर्व आएगा. ठीक है. दूसरा होगा रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन वो होगा जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में और अपने डिस्टेंस को कभी भी नहीं, जिस तरह कंप्यूटर के अंदर आपकी सीडी चलती है या डिस्क चलती है, वो चीज़ आ जाती है. इसके अलावा और भी रेक्टिलिनियर मोशंस की काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं जिसको मैं बताता हूँ आपको. तो एक ये द मूवमेंट ऑफ द डोर. आपका दरवाज़ा जो है ये कभी नहीं, मतलब जितना उस मूवमेंट में आता है उतना ही मूवमेंट में बंद होता है. कभी भी नहीं होता कि जी जब खोलें तो दरवाज़ा छोटा सा हो, जब बंद करें तो इतना बड़ा हो जाए वो बंद ही ना हो. ठीक है. द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स अलॉन्ग द स्ट्रेट पाथ. लिफ्ट जो होती है वो, और स्ट्रेट ट्रैक्स जो गाड़ी के होते हैं, तो वो ये चीज़ कर्वलिनियर. अब सेकंड मोशन आपके पास आ गई रोटेटरी मोशन. रोटेटरी मोशन उस मोशन को कहते हैं बच्चों जो एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट करके घूमती है. ठीक है ना. यानी कि ये आपका एक पॉइंट होता है और ये इसके इर्द गिर्द रोटेट करती है. यहाँ से यहाँ आती है, 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 और ये इस तरह रोटेट करती है. हर जगह पे जो इसका ये डिस्टेंस होता है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये हर जगह पे 4 सेंटीमीटर ही रहेगा. तो ये आपकी क्या कहलाएगी? रोटेटरी मोशन. क्या कहलाएगी? रोटेटरी मोशन. इसका क्या आ जाएगा? रोटेटरी मोशन इसका आ जाएगा. अभी पढ़ते हैं रोटेटरी मोशन. सीलिंग फैन. लेट अस ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द सीलिंग फैन. Following conclusion can be drawn about this motion. The fan itself does not changes its position. The blades moves around the fixed central point in a circular path. Different portions of the blades moves in circular path of different radius. Such a motion in which different parts of an object move around the central fixed point or axis in a circular path with different radii, but the body as a whole does not move from one place to another place is called a rotatory or circular motion. अच्छा, इसका दूसरा नाम उसने जो आपको बताया सर्कुलर मोशन. देखें, जैसा कि मैंने आपको सर्कल बना के उसी की मूवमेंट बताई है, यानी कि एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द हरकत करना. जिस तरह फॉर एग्जांपल आपका पंखा घूमता है, इसको रोटेटरी मोशन कह सकते हैं. ठीक है. और देखें बच्चों, आप डिफरेंट हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आल्सो एग्जीक्यूट सर्कुलर और रोटेटरी मोशन. जो घड़ी के अंदर सुइयाँ होती हैं वो भी एक मतलब सेकंड्स की होती है, सेकंड हैंड होती है, वो जल्दी चलती है. उसके बाद मिनट्स की होती है, फिर हार्स की होती है. वो भी एक सर्कुलर में ही हरकत करती हैं. यानी कि 1 से 2 से अप टू 12 तक जाती है. सेकंड वाली भी, मिनट्स वाली भी और हार्स वाली भी. तो इससे वो भी सर्कुलर मोशन करती हैं. ड्यूरिंग सर्कुलर और रोटेटरी मोशन द डिस्टेंस ऑफ द वेरियस पोर्शंस ऑफ द बॉडी और द ऑब्जेक्ट्स remains the same from the central point or the axis of the rotation.
axis of rotations. If tie off stones from the rope and move it, whirl it, as shown in the figure this, the stone will execute a rotatory or circulatory motion. ठीक है, इस तरह आप एक मतलब धागे के साथ कोई भी एक हैवी चीज़ बांध लें. फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर आपके पास पेन मौजूद होगा, ठीक है. पेन को आप बांध दें, आप उस धागे को एक जगह से फिक्स करके पकड़ लें और उसको घुमाएं. यूँ घुमाएं तो जब थोड़ी सी आपको उसको मतलब फोर्स देंगे, अप्लाई करेंगे उस पर, तो वो खुद ही उसके बाद वो घूमना शुरू करके आप हल्की सी भी उसको फोर्स देंगे तो वो सर्कुलर में घूमेगा. एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन. Some examples of rotatory motions are the movement of a CD in a CD player, the arm of a cricket while bowling, the motion of a potter's wheel, the motion of a spinning wheel, the motion of a spinning top. नेक्स्ट पे आ गई रोटेटरी मोशन का. आपको पता चल गया जो एक पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता है. आगे बच्चों आपकी एक्सेलरेटरी मोशन. एक्सेलरेटरी मोशन उस मोशन को कहते हैं जिसमें 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री से एंगल स्टार्ट होता है, 180 तक जाता है और 180 से वापस 0 पर आता है. इसको ट्रू एंड फ्रो एंड एक्सेलरेटरी मोशन कहते हैं. ट्रू एंड फ्रो आगे पीछे. आप गाड़ी के वाइपर्स का कह सकते हैं या सिंपल पेंडुलम का कह सकते हैं. दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सेलरेटरी मोशंस. लेट अस ऑब्जर्व द मोशन ऑफ ए क्लॉक पेंडुलम. ये जो क्लॉक के नीचे पेंडुलम लगा हुआ है, ये वाला, ये यहाँ से 0 की तरफ जाता है, फिर वापस आके 180 पे आता है, फिर 0 की तरफ जाता है, फिर 180 पे आता है, फिर 0 की तरफ. ये कहलाता है एक्सेलरेटरी मोशन. क्या कहलाता है? एक्सेलरेटरी मोशन. द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट दिस मोशन. द पेंडुलम एज द होल. पेंडुलम बच्चों इस चीज़ को कहते हैं कि जब आपके पास इस टाइप का एक ये आता है और यहाँ पे ये इसके साथ थ्रेड के साथ बॉब बांधा जाता है, ठीक है, बॉल होता है, और ये बाल यहाँ से यहाँ पे आता है तो 180 डिग्री कहलाता है, ठीक है. और यहाँ से यहाँ जब ये आता है तो ये 0 डिग्री कहलाता है. यहाँ से इसका यहाँ जाना और यहाँ से यहाँ आना, ये इसका ऑक्सीलेटरी मोशन कहलाता है. ये पेंडुलम की एग्जांपल है. किसकी एग्जांपल है? पेंडुलम की. ये आपकी पेंडुलम की एग्जांपल आ गई. द पेंडुलम मूव्स बैक एंड फोर्थ. आगे और पीछे जाता है एट द गिवन प्लेस. द मूवमेंट ऑफ ए पेंडुलम इज अबाउट द सेंट्रल आवर मीन पोजिशंस. सेंट्रल इसकी जो होती है, ये जो मैंने पहले बनाया, ये अभी मीन पोजीशन में ये खड़ा है. मैं मीन पोजीशंस में ये खड़ा है. सच अ काइंड ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट इट्स मीन पोजीशंस इज कॉल्ड ऑक्सीलेटरी मोशन. इन अदर वर्ड्स, ऑक्सीलेटरी मोशन is to be and to and fro motion of a body, right? ये पेंडुलम यहाँ पे बनाया गया है. ये आपको इसकी सारा कुछ सिखाया बता दिया गया कि 0 से ये स्टार्ट करता है, 180 तक जाता है स्ट्रेट एंगल में, और फिर 180 से होता हुआ वापस ये 0 पे जाता है. Some examples of oscillatory motions are the movements of our hands while walking, the left right movement of hands held fan, the movement of branches of tree, the movement of suspended spring, the movement of a swing. Periodic motion. In some kinds of periodic motion, the object repeats its motion after a fixed interval of time. Such motion is called periodic motion. Some rotatory motions are periodic motions. However, the oscillatory motions are periodic motions. For example, the pendulum displaces from its mean positions, oscillate about its mean positions. The time taken by the pendulum for one complete oscillation from position A to B and A to C and to A is called a periodic of oscillation. During its oscillatory motions, a pendulum repeats its motion after each period of oscillation. Thus, periodic motions can be used
to measure the interval of time. Example of periodic motions are the rotation of the earth around the sun, the rotation of the moon around the earth, heartbeat, the vibration of the string of a bow, all oscillatory motions. Combination of different types of motion. In daily life, objects undergo a combination of various types of motion we have studied so far. Some examples of such as motions are given below. The motion of the wheel of the vehicle, bicycle, movement from one place to another place. It undergoes both translational and rotational motion. Number 2, the motion of a ball rolling on the ground, rectilinear and rotational motion. Rectilinear and rotational motion. The motion of a screw. Number 3, rectilinear and rotational motion. Number 4, the motion of earth spinning around the sun, translational, circular and periodic motions. Number 5, the movement of an object attached to a suspended spring, translational and oscillatory motion. Right? उसके बाद बच्चों, remembering points, different modes of transport are available to us at travel from one place to another place. Right? Number 2, the invention to the wheel was landmark in a modern stations of modes of transport. अच्छा, आज हमने जो चीज़ डिस्कस की आपसे वो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन. नंबर 1 इज़ ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 इज़ वाइब्रेटरी मोशन एंड नंबर 3 इज़ रोटेटरी मोशन. बच्चों, मैंने आपको ट्रांसलेटरी मोशन में बताया वहाँ रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर 2 टाइप्स की मोशंस होती हैं. यानी कि स्ट्रेट लाइन में जब आप सीधे चल रहे होते हैं तो ये आपकी रेक्टिलिनियर मोशन आ जाती है, यानी कि एक ही रास्ते में, उसमें कोई मोड़ वगैरह नहीं आता. लेकिन कर्वीलिनियर में ये तो उसमें कर्व आ जाता है, मोड़ आता है उसमें. आप गाड़ी को सीधे जा रहे होते हैं, अचानक रोड इस तरह मुड़ता है तो आप इस साइड पे मुड़ जाते हैं या इस साइड पे मुड़ जाते हैं. ये आ गई ट्रांसलेटरी मोशन. दूसरी है रोटेटरी मोशन. जब भी कोई चीज़ एक पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में मतलब कि सीलिंग फ़ैन है जो हर बच्चे के पास होगा और हर एक घर में होगा, वो उसको देख सकते हैं. आप इसको नीचे चला के इसके नीचे सो के देखें कि कभी भी इसके पर जो हैं वो कभी उधर कभी उधर कभी उधर नहीं आते, बल्कि फ़िक्स एक पॉइंट पे. अगर एक विंग की जो लेंथ है वो 20 मतलब 1.5 फीट है या 2 फीट है, तो वो हर पूरे सर्कुलर में 2.5 फीट ही रहेगी. ये नहीं कि यहाँ पे आई तो 2.5 हो गई, यहाँ पे ज़रा सा अंदर होगी, फिर बाहर होगी, फिर ऐसा करते करते नहीं, वो एक फ़िक्स पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती है और वो उस तरह रोटेट करती है. नंबर 3 है आपका वाइब्रेटरी मोशन. वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं टू एंड फ्रो, आगे पीछे की मोशन को हम. आप इसमें गाड़ी के जो वाइपर लगे होते हैं वो देखें 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं एंगल की और 180 तक जाते हैं, फिर 180 से 0 की तरफ जाते हैं. वो टू एंड फ्रो मोशन है. आपके पास पेंडुलम की टू एंड फ्रो मोशन है, और जो घड़ियों के अंदर पेंडुलम लगा हुआ होता है उसकी आपके पास टू एंड फ्रो मतलब टू एंड फ्रो मोशन है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, ये 3 टाइप्स ऑफ मोशन आपके पास आ गई. नंबर 1 इज़ ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 इज़ वाइब्रेटरी मोशन, नंबर 3 इज़ ऑक्सिलेटरी या रोटेटरी मोशंस. अच्छा जी, उसके बाद बच्चों मैं आपके साथ इसके जो चूज़ द करेक्ट आंसर हैं ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ.
उसके बाद बच्चों हम जो डिस्कस करते हैं वो है चैप्टर नंबर 1 का डी है, 2 का बी है, 2 का सी है, 1 2 3 का बी, 4 का ए और 5 का बी। मीटर, रॉकेट, उसके बाद मीटर, रॉकेट, अच्छा तो बच्चों इसके साथ जो है कि पेज नंबर 129 पर आ जाएं। पेज नंबर 129 पे बच्चों आपके MCQs हैं, तो MCQs आपको टिक करवा दिए जाते हैं। आप देख लें इनका कौन कौन सा है। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर ए का, विच ऑफ दीज कैन नॉट बी यूज एज अ यूनिट ऑफ लेंथ मेजरमेंट फेस, क्या कहेंगे डी। इसका बच्चों पहले क्वेश्चन नंबर 1 का डी है आंसर, ठीक है। अभी नंबर 2 पे आप आ जाएं। A distance of 2.5 meter is not equal to dash mm, इसका सी है, क्या है इसका सी। नंबर 3, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन मोशन among these, इसका बी है, द सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक, इसका बी। नंबर 4 पे क्या आएगा, हार्ट बीट इज अ डैश मोशन, पीरियोडिक मोशन, ए है इसका। नंबर 5, पीरियोडिक मोशन इज यूज टू मेजर डैश टाइम इंटरवल, बी। तो ये बच्चों आपके MCQs भी 129 पेज पर आगे। इस कल जो है आपको एक एक लाइन का क्वेश्चन आंसर करवा दिए जाएंगे और आंसर दीज क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको करवा दूंगा और जो डिटेल्स हैं वो आप लोग खुद कर लेंगे। तो इस तरह आपका चैप्टर नंबर 12 जो है वो ख़त्म हो गया, राइट।